जी स्टूडेंट, now we are going to study the types of our morphemes. ठीक है, as I already told you about morphemes. Morphemes क्या होते हैं? Smallest unit और word होते हैं that conveys a meaningful sense to the reader. ठीक है, अब morphemes की हमने टाइप पढ़नी है. The types of morphemes. There are two types of morphemes: free morphemes and bound morphemes. And free morphemes are further divided into two types: lexical morphemes and functional morphemes. ठीक है, and the bound morphemes are further divided into two types: derivational morphemes and inflectional morphemes. ठीक हो गया. अब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं पहले free morphemes को. What are free morphemes? ठीक है, a free morpheme is one that can be uttered alone, as the word free is indicating you that a single word can stand alone, can stand independently, and can convey you a complete sense. It is called a free morpheme. अब जैसे consider an example of book, table, bag, table. These all are free morphemes. ठीक हो गया. Now we have divided free morpheme into two subtypes. ठीक है, the first one is lexical morphemes. Now what are lexical morphemes? Lexical morphemes words are the words that carry content. Content means that convey you a message. ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है what are the parts of speech. ठीक है, nouns, adjectives. ठीक है, अब अगर आप देखें verbs, nouns and adjectives को, these are those parts of speech which carry content, and these are all included in lexical morphemes. ठीक है, अब आपको पता है noun is the name of person, place और thing. जैसे कि girl हो गया, man, house, tiger, ये free morpheme है. ठीक है, it can stand alone. Adjective हो गए, sad हो गया, long हो गया. ठीक है, that can add to the quality of noun. ठीक है, a verb हो गया, that can demonstrate an action. ये तमाम क्या है? These are the lexical morphemes. ठीक है, now the lexical morphemes belong to an open class. What does open class means? Open class का मतलब ये होता है open ended. You can add or combine any word to it for producing another word, or for creating another word, for creating multiple expressions. आप जो है इन lexical morphemes को यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि nouns हो गए, adjectives हो गए और verbs हो गए, और इन्हें हम open class में consider करते हैं. ठीक है, उसके बाद है functional morphemes. The functional morphemes is the second type of free morphemes. ठीक है, अब in the functional morphemes we include articles, prepositions, pronouns and conjunctions. ठीक है, अब articles में क्या है? the, a, n. ठीक है, you people are well aware about the articles, and you are also well aware about the prepositions, pronouns and conjunctions. ठीक है, and now you are also well familiar that we do not add any word with the articles. अब जैसे आप the का word यूज कर रहे हैं तो आप इसके साथ कोई भी word को add नहीं करेंगे. अब आप preposition यूज करेंगे, कोई भी आप above यूज कर लें, in यूज कर लें. ठीक है, ऑन है, एट यूज कर लें. आप जो भी यूज करेंगे उसके साथ आपने कोई वर्ड तो नहीं ऐड करना ना. अब ऐड के साथ आप कोई वर्ड तो नहीं लगाते कंबाइन करने के लिए. मतलब आप मेरे बात को समझें, ऐड के साथ क्या आप कोई वर्ड को फौरन कंबाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इन के साथ, ऑन के साथ, प्रोनाउंस के साथ, ही, शी, हर हो गया. ठीक है, अब ये जितने भी हैं ये क्लोज्ड क्लॉज से बिलोंग करते हैं. वाई? बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट न्यू वर्ड्स और न्यू वंस. ठीक है, दीज आर इंक्लूडेड इन फ्री मॉर्फीम्स. सही हो गया. अब हम आ जाते हैं, अब मैंने आपको बता दिया जी, द फ्री मॉर्फीम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: द लेक्सिकल मॉर्फीम्स एंड द फंक्शनल मॉर्फीम्स. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर बाउंड मॉर्फीम्स. ठीक है, बाउंड मॉर्फीम्स मॉर्फीम की दूसरी टाइप है. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, बाउंड मॉर्फीम्स, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स. ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू रीड दैट व्हाट आर बाउंड मॉर्फीम्स. A bound morpheme cannot be uttered alone with meaning. ठीक है, इससे ये जो बाउंड मॉर्फीम में जो वर्ड होता है, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. इट ऑलवेज एडेड टू वन और मोर मॉर्फीम्स टू फॉर्म अ वर्ड. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
अब प्ले है, एस लगा दिया, प्लेस, रीप्ले, चीपली, ठीक है, चीपर, अनएबल, ब्राइटन। तो ये क्या है, दीज आर द सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस, ठीक है, विच वी आर एडिंग इनटू इट फॉर क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ मीनिंगफुल कनेक्शन और अ मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, बाउंड मॉर्फीम्स कहेंगे। अब बाउंड मॉर्फीम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, द डेरिवेशनल मॉर्फीम्स एंड द इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। What are derivational morphemes? When added to a stem or a base, they almost always change the part of speech and the meaning of the word. मतलब जो एक बेस वर्ड है, जो एक बेसिक वर्ड है, उसके साथ जब आप पार्ट ऑफ स्पीच और उसका जो मीनिंग ऑफ द वर्ड क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फीम्स। जैसे अब गुड है, इट इज़ एन एडजेक्टिव, जब आप NESS ऐड करते हैं तो ये नाउन बन जाता है, ठीक है, गुडनेस। तो ये ड्राइव डेरिवेशनल निकला है, ड्राइव से हमने एक और मीनिंग ड्राइव कर लिया। गुड एडजेक्टिव के अंदर NESS ऐड किया है तो गुडनेस नाउन बन गया। तो इसका जो वो है, इसका जो अब इसका यूज़ है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। मीनिंग भी इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। किस तरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने से। गुड एडजेक्टिव के अंदर जब NESS डाला तो ये एडजेक्टिव कहाँ बन गया, नाउन में चेंज हो गया। अब केयर है, ये नाउन भी है, वर्ब भी है। जब आप LESS डालेंगे तो क्या बन जाएगा, केयरलेस। देखें, नाउन है, यह वर्ब है, ये किस में डल गया, एडजेक्टिव में। इसी तरह प्ले, पे, PAY, पे, ये वर्ब है। जब MENT मेंट डलेगा तो ये क्या बना, पेमेंट, नाउन बन गया, चेंज हो गया ना। देखिए, वर्ब नाउन में चेंज हो गया। सिस्टमैटिक, सिस्टम इज अ नाउन, ATIC डाला तो सिस्टमैटिक एडजेक्टिव बन गया। अब देखें हम किस तरह वर्ड्स को जो है रिशफल करके उनके मीनिंग्स के अंदर कैसे कैसे चेंजेस लाते हैं। इसकी स्टडी को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब ये देखें, ये बाउंड मॉर्फीम में जो हमने डेरिवेशनल मॉर्फीम पढ़ा है, इसके अंदर हमने कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, कैसे हमने मीनिंग्स को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसे गुडनेस, अब ये पूरा क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अब देखिए, अब गुड को अलग करें, नेस को अलग करें, ये एक वर्ड है जो कि बाउंड हो चुका है, गुडनेस, ठीक है। अब इधर आ जाए, सेकेंड हमारे पास है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स शो डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड। अब ये एक ही लफ्ज़ की मुख्तलिफ ग्रामेटिकल फॉर्म्स शो करता है। कौन, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ, ठीक है। अब जैसे ये देख ले, प्लूरल है, एस है। अब जैसे ऐड करें, बुक से निकला बुक्स, ठीक है, तो ये बुक जो है स्टैंड्स फॉर सिंगुलर वाइल बुक स्टैंड्स फॉर द प्लूरल। अब चेंज हो गया ना पूरा ग्रामेटिकल फॉर्म। अब पोजेसिव में आ जाए, जेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, व्हाट डज पोजेसिव मीन्स। पोजेसिव ये है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी, किसी चीज़ की जो आप पोजेशन शो करते हैं, जो चीज़ आपके पास अपनी होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोजेसिव यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हो रही है ना। अब वर्ब में आ जाए, थर्ड से पर्सन सिंगुलर, कितना बड़ा चेंज आता है जब हम वर्ब्स की फॉर्म को चेंज करते हैं। थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब जैसे वॉक्स, फिर आ जाए वॉक्ड, ठीक है, विजिट्स, विजिटेड, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव ING लगाएं, वर्किंग, जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में लगा देते हैं। तो ये जब तमाम वर्ड्स जब हम ऐसे ऐड करते जाते हैं तो मीनिंग्स क्या होते जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है वॉक्स, ठीक है, फिर वॉक्ड सेकंड फॉर्म आ गई है, और फिर ये जो है यहाँ पे देखें वर्कड सेकंड फॉर्म आ गई है, ठीक है। अब वॉकिंग के अंदर आप देख लें, ये आपके पास ING कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया। तो ये वर्ब्स की जो चेंजिंग्स होती हैं इन्हें इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कहते हैं, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि किस तरह with the help of changing these words we are creating the words which are conveying different senses, ठीक है। तो ये तमाम हम मॉर्फीम्स में हमने स्टडी कर लिया है, दैट व्हाट आर मॉर्फीम्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स, फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स, ठीक हो गया। और होप सो स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल एंड प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स एट योर होम, ठीक है। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर मॉर्फीम्स, ट्राई टू डू एन एक्सरसाइज ऑन इट, ठीक है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आएंगे, ठीक है। समझ तो हम लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। जब तक हम
हम प्रैक्टिस नहीं करते. जस्ट ट्राई टू डू इट प्रैक्टिस एट होम. ठीक है. एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.